Hi, in today's class we are solving Jamia MBA 2017. As we have seen in the previous classes that antonyms and synonyms, which was part of Jamia MBA entrance of 2016's paper. In today's class we will do the Jamia MBA 2017's. We will solve the question papers and we will see that what kind of questions they are asking. So without further ado, we will read the question and we will solve it. So first read question and then we will solve that. Read question 1 to 12 carefully and select the word which is the most similar or dissimilar in the meaning to the word provided. So we have to find the similar and dissimilar. So basically the antonym and synonyms. So dissimilar means antonyms and similar means synonyms. So we have the word amiable. Amiable, I will tell you the meaning of amiable. So amiable means someone who is friendly. Okay, so amiable is friendly, kind, gregarious. उस सेंस में हम यूज करते हैं amiable को. Okay, friendly. We have to find the dissimilar. So if the synonyms is friendly, then unfriendly is the dissimilar, which means antonym of it. We have to see the other words as well. So we have the word faithful. Okay, so faithful means loyal. Okay, loyal or trustworthy. It means trustworthy. So these are the synonyms to faithful. Here we are looking at the synonyms. These are the synonyms. We have the word insulted. Insulted means offended. किसी को offend कर दिया जाए वो insulted feel करता है. Offended. It means verbally attacked. है ना, इंसल्ट में क्या करते हैं? इंसल्ट में पीपल से थिंग्स विच आर अनप्लीजेंट. सो वर्बली अटैक से इंसल्टेड हम बोल सकते हैं. देन वी हैव द वर्ड डिसटेस्टफुल. ओके, सो डिसटेस्टफुल मीन्स अनप्लीजेंट. कोई चीज़ अगर ख़राब है ना तो उसके हम डिसटेस्टफुल भी यूज़ कर सकते हैं. अनप्लीजेंट, अनप्लीजेंट के सेंस में यूज़ करेंगे. और अगर कोई चीज़ सही नहीं लग रही है आपको तो डिसएग्रीएबल भी हो सकती है वो चीज़, है ना. डिसएग्रीएबल तो इस सेंस में यूज़ करेंगे. दिस इज एल, डिसएग्रीएबल. सो आई होप इट इज क्लियर. वी विल सी द नेक्स्ट वर्ड. द नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज acute. Okay, so the word acute, we have to see the dissimilar of acute. So acute means sharp, intense, highly developed. acute का मतलब क्या होता है? sharp. okay, oh sorry, we have to find the dissimilar. Okay, so it means acute means sharp. It means sharp. We have to see the meaning. intense, highly developed, है ना. You might have heard the word acute disease and chronic disease. So acute diseases are the diseases which stay for the longer duration. Okay, so we have to see the synonym. So it is dull, because if acute means sharp and sharp means तेज तर्रार, डल मीन्स होता है जो तेज तर्रार ना हो. सो नॉट शार्प के सेंस में यूज़ करते हैं. किस सेंस में यूज़ करेंगे? नॉट शार्प. ओके, लैकिंग इंटेंसिटी, ये सब इसके मीनिंग है. लैकिंग इंटेंसिटी, किसी में जो धार हो ना वो ना मौजूद हो, उस सेंस में यूज़ करेंगे. ये अक्यूट का अपोजिट हो गया. क्या हो गया? अपोजिट हो गया अक्यूट का. देन वी हैव द वर्ड, वी हैव टू सी द मीनिंग. सो वर्ड इज कॉन्स्पिक्यूअस. कॉन्स्पिक्यूअस का मतलब होता है, याद रखना ये मुश्किल वर्ड है, पूछ लेते हैं. कॉन्स्पिक्यूअस मतलब है जो आसानी से नोटिस किया जा सके. ओके, ईजिली नोटिसेबल. किसी भी चीज़ को आसानी से अगर हम नोटिस कर लेंगे तो हम उसे कॉन्स्पिक्यूअस के सेंस में यूज़ करेंगे. क्लियर हो गया? सो इट मीन्स दिस. ओके, द नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज रेलिवेंट. ओके, सो रेलिवेंट इज व्हाट? रेलिवेंट मीन्स रिलेटेड टू द मैटर एट द हैंड. जो चीज़ उस वक्त मौजूद होना, तो उसी सेंस में हम यूज़ करते हैं कि रेलिवेंट है ये. रिलेटेड टू द मैटर, रिलेटेड टू द मैटर एट हैंड. उस वक्त जो चीज़ हो रही हो ना उसमें ज़रूरी हो तो उसे हम बोलेंगे रेलिवेंट.
अलूफ का मतलब होता है कोई अगर अलग अलग रहे, सो इमोशनली डिस्टेंस इज डिस्टेंट। अलूफ का मतलब होता है इमोशनली डिस्टेंस, मतलब उससे इमोशनली वो कनेक्ट नहीं कर पा रहा हो, ठीक है। तो अलूफ का मतलब होगा इमोशनली distant. Okay, it means emotionally distance. I hope it is clear. We have to see the new words. The words we have to see is recant. So can you think about the word recant? What does it means? What it could mean? So the word recant means to withdraw. Okay, it means, okay, so we have to see the meaning first. The meaning of recant is to withdraw. टू विड्रॉ, विड्रॉ करने का मतलब क्या होता है? विड्रॉ करने का मतलब होता है कि वापस ले लेना कोई चीज़, टू विड्रॉ। ओके, और टेक बैक स्टेटमेंट, और टेक बैक स्टेटमेंट यानी कोई चीज़ अगर कह दी है किसी ने तो वो वापस लें, तो उसे हम क्या बोलेंगे? रिकैंट बोलेंगे। यहाँ पे देखो हमें सबसे डिसिमिलर वर्ड देखना है। ओके, मोस्ट डिसिमिलर। सो यहाँ पे देखो अफर्म, रेक्टिफाई, ऑफेंड, इग्नोर। सो यहाँ पे इसका डिसिमिलर क्या होगा? अफर्म। अफर्म में क्या होता है? अफर्म में जब भी कोई चीज़ के लेके कोई आदमी डटा रहे तो अफर्म को यूज़ करते हैं कि वो अफर्म रहा, वो फर्म रहा अपनी बात पे, ठीक है, उस सेंस में हम यूज़ करते हैं। तो इसका मतलब होता है टू डिक्लेयर एज ट्रू, मतलब जो चीज़ कह दी है वो सच हो गई है। टू डिक्लेयर एज ट्रू, किसी चीज़ को सच साबित कर देना। ओके, अब रेक्टिफाई का मतलब क्या होता है? रेक्टिफाई का मतलब होता है किसी चीज़ को करेक्ट कर लेना, किसी चीज़ को सही कर लेना। ओके, टू करेक्ट समथिंग, रेक्टिफाई का मतलब क्या होगा? टू करेक्ट समथिंग, रेक्टिफाई का मतलब वही होगा। ओके, देन वी हैव द वर्ड ऑफेंड। ऑफेंड का मतलब होता है किसी की इंसल्ट करना। ओके, सो टू इंसल्ट, है ना, ऑफेंड का मतलब वही होता है। और टू हर्ट, किसी को हर्ट करना, उस सेंस में यूज़ करते हैं हम। ओके, सो द वर्ड वी हैव, नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज इंसल्ट। हियर वी हैव द वर्ड इंसल्ट। ओके, ऑफेंड को हम इंसल्ट के सेंस में यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव इज इग्नोर। ओके, सो इग्नोर मीन्स टू डिसरिगार्ड, किसी को कुछ ना समझना, उसी को हम इग्नोर बोलते हैं ना, किसी को इग्नोर करना, तो उस सेंस में हम यूज़ करते हैं। टू डिसरिगार्ड के सेंस में हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे रिकैंट का अगर हम सिनोनिम्स देखें, रिकैंट का हमारा एंटोनियम क्या हो जाएगा? रिकैंट का एंटोनियम हमारा अफर्म हो जाएगा। रिकैंट का मतलब क्या होता है? रिकैंट का मतलब होता है कि टू विड्रॉ और टेक बैक स्टेटमेंट, कोई बात अगर किसी ने कह दी उससे विड्रॉ कर ले तो हम उसे रिकैंट बोलते हैं। क्लियर हो गया ये? ओके, now we have the word which is called we have the word perilous. Okay, so recall perilous. perilous का मतलब क्या हो रहा था? perilous का मतलब होता था कि डेंजर, किसी को खतरे में डालना, ठीक है। अब डेरिलस का मतलब क्या होता है? डेरिलस का मतलब होता है जब ऐसा माहौल बन जाए कि सब एकदम से बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो और एक वायलेंट एक्साइटमेंट हो। ओके, मूव मेंटेलिटी के सेंस में हम यूज़ करेंगे इसे। वायलेंट एक्साइटमेंट हो, पता नहीं है क्या हो रहा है, तो उसे हम उस सेंस में यूज़ करते हैं डेरिलस। सो इन अ स्टेट ऑफ वाइल्ड एक्साइटमेंट। ओके, वाइल्ड एक्साइटमेंट, ऐसा जुनून के मतलब बिल्कुल जानवरों की तरह, तो उस सेंस में हम यूज़ करेंगे। और कई बार जो है मेंटल कन्फ्यूज़न के सेंस में भी यूज़ करते हैं, जैसे कि मोस्टली कॉन्सर्ट्स वगैरह में कंफ्यूज हो जाते हैं तो भगदड़ हो जाती है, एंड ऑन रेलवे स्टेशन पीपल गेट कंफ्यूज, so many incidents happens there, okay, in such places. So Daedalus means here if you see calm, ये तो आपका डिसिमिलर हो जाएगा, एंटोनियम हो जाएगा। काम क्या हो जाएगा? एंटोनियम हो जाएगा, ठीक है। इफ़ यू सी टेस्टी, इसका भी कोई सेंस नहीं बन रहा है यहाँ पे। इफ़ यू सी सस्पिशियस, इसका भी कोई सेंस नहीं बन रहा है। द वर्ड विच इज़ सिमिलर टू डेरिलस इज मैनियक। मैनियक का मतलब क्या होता है? मैनियक का मतलब होता है एक्सट्रीमली एक्साइटेड। ओके, कोई भी बहुत ज़्यादा ओवर एक्साइटेड हो ना तो उसे हम क्या बोलेंगे? मैनियक बोलेंगे, एक्सट्रीमली एक्साइटेड। ओके, इस सेंस में हम इसे यूज़ करेंगे। देन हाइपर एक्टिव के सेंस में भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, हाइपर
एक्टिव के सेंस में भी हम इसे यूज़ कर सकते हैं। सो क्लियर हो गया। डेरिलस का सिमिलर क्या था? डेरिलस का सिमिलर हमारे पास मैनियक आ जाएगा। देन वी हैव द अदर वर्ड्स, द वर्ड वी हैव इज काम। ओके, सो काम का मतलब क्या होता है? काम का मतलब यहाँ पे हम पीसफुल के सेंस में यूज़ कर लेंगे, ठीक है, पीसफुल, पीसफुल के सेंस में यूज़ कर लेंगे काम को। देन नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज सस्पिशियस। सस्पिशियस को हम डाउटफुल के सेंस में यूज़ करेंगे। किस सेंस में यूज़ करेंगे? डाउटफुल के सेंस में यूज़ करेंगे। डाउटफुल हो जाएगा, फिर उसके बाद डिस्ट्रस्टफुल भी यूज़ कर सकते हैं। जिस पे अगर किसी चीज़ पे यकीन नहीं हो तो उसे हम डिस्ट्रस्टफुल बोल सकते हैं, ठीक है। ये क्लियर हो गया, ठीक है। हमने देख लिया डेरिलस। डेरिलस का मतलब होता है इन अ स्टेट ऑफ वाइल्ड एक्साइटमेंट और मेंटल कंफ्यूजन, उस सेंस में हम यूज़ कर रहे थे, ठीक है, इन अ स्टेट ऑफ वाइल्ड एक्साइटमेंट। इसका हमें देखना था सिमिलर, तो सिमिलर हमारा क्या था? मैनियक। मैनियक इसका आंसर हो जाएगा। ओके, वी हैव टू सी द नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज इनफर्म। ओके, सो व्हाट डज इनफर्म मीन्स? इनफर्म मीन्स अगर कोई फिजिकली कमज़ोर हो तो उसके लिए हम इनफर्म यूज़ करते हैं। तो इनफर्म का मतलब हो जाएगा फिजिकली वीक। ओके, फिजिकली वीक, इनफर्म। अभी जो है ये बुढ़ापे के सेंस में ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो स्पेशली ड्यू टू एज और इलनेस, मतलब अगर कोई बीमार हो जाए उसकी वजह से अगर कोई कमज़ोर हो जाए तो उसे हम इनफर्म बोल सकते हैं, ठीक है। और कोई अगर बूढ़ा हो जाए तो कमज़ोर हो जाए तो उसे भी हम इनफर्म बोल सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखो क्या है हमारे पास, सिमिलर किसका है? इसका सिमिलर, डायरेक्ट सिमिलर इसका हो जाएगा वीक। इसका मतलब तो हमें सबको पता है। देन वी हैव ऑप्शन। तो आप ऑप्शन में देखो कितना आसान ऑप्शन दे रखे हैं। हॉस्पिटल हमें दे रखा है, तो हॉस्पिटल का मतलब क्या होता है? हॉस्पिटल का मतलब सबको पता है क्या होता है। देन वी हैव ऑप्शन ऑफ शॉर्ट। शॉर्ट का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ की कमी हो जाना। सो हम इसे बोल सकते हैं डार्थ। डार्थ बोल सकते हैं ना। इसे हम बोल सकते हैं स्कैरसिटी। क्या बोल सकते हैं? स्कैरसिटी, है ना, पढ़ा होगा आपने स्कैरसिटी। अब शॉर्टेज तो सबको ही पता होता है। नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज फोर्टिट्यूड। द वर्ड इज फोर्टिट्यूड। ओके, सो फोर्टिट्यूड का मतलब होता है अपने जहन को इतना मजबूत बना लेना है कि किसी चीज़ से डरना नहीं है। सो फोर्टिट्यूड का मतलब होता है स्ट्रेंथ ऑफ माइंड। ओके, स्ट्रेंथ ऑफ माइंड एंड courage. Okay, so far it is clear. Okay, so the word we had was infirm, and we have seen the synonyms, we have seen the meaning of it and then synonyms of it, because we have to find the similar. Okay, तो weak इसका आपका similar हो जाएगा। clear हो गया। next word we have is cautious. okay, so cautious mostly हम वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ पे भी हमें चेतावनी दी जाए, तो उस सेंस में हम कॉशियस यूज़ करते हैं। ओके, सो द वर्ड इज कॉशियस। सो कॉशियस का मतलब होगा केयरफुल। ओके, इट मीन्स केयरफुल। पहले मीनिंग देखते हैं क्या है इसका, फिर उसके बाद एंटोनियम देखेंगे इसका। इसका मतलब हो गया केयरफुल, टू अवॉइड रिस्क्स और मिस्टेक्स। क्लियर हो गया ये, है ना। देन यहाँ पे देखो, यहाँ पे केयरफुल इसका सीधा सिनोनिम हो जाएगा। ओके, रीजनेबल इसका सिनोनिम हो जाएगा। ओके, इलॉजिकल और रेकलेस हमारे पास दो नेगेटिव वर्ड है और हमें यहाँ पे इसका डिसिमिलर देखना है। डिसिमिलर देखना है, तो डिसिमिलर में हम यहाँ पे इसका डिसिमिलर जो सबसे ज़्यादा डिसिमिलर लग रहा है वो रैकलेस लग रहा है। यानी कॉशियस में हम केयरफुल रहते हैं, रैकलेस में क्या होता है? केयरलेस रहते हैं हम। रैकलेस में केयरलेस रहते हैं, रैकलेस में हम रहते हैं ऐसे जहाँ पे हमें कोई कॉशन, कोई एहतियात ना बरतें। जहाँ पे किस सेंस में हम यूज़ करेंगे? जब कभी कोई एहतियात ना बरता जाए तो उस सेंस में हम यूज़ करते हैं, तो नॉट कॉशियस के सेंस में यूज़ करते हैं। क्लियर हो गया। ओके, सो द आंसर इज रैकलेस। इलॉजिकल का मतलब क्या होता है? इलॉजिकल का मतलब होता है जब किसी चीज़ में कोई सेंस ना हो तो हम
लैकिंग सेंस के सेंस में यूज़ करेंगे। ओके, लैकिंग सेंस, किसी चीज़ की कोई समझ ना हो तो उस सेंस में हम यूज़ करेंगे इलॉजिकल को। क्लियर हो गया? ओके, वी विल सी द नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज ल्यूर। ओके, सो ल्यूर को हम लालच के सेंस में यूज़ करते हैं। किसके सेंस में यूज़ करते हैं? लालच के सेंस में। जब भी कहीं पे भी लालच का मीनिंग आ जाए तो वहाँ पे ल्यूरिंग के सेंस में यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे ल्यूर को अगर सिनोनियम्स पहले मीनिंग देख लेते हैं तो इसका मतलब, ल्यूर का मतलब होता है टू टेम्प्ट और टू अट्रैक्ट, किसी को लुभाना या किसी को अट्रैक्ट करना, और अट्रैक्ट के सेंस में हम यूज़ करते हैं अट्रैक्ट। ओके, सो ल्यूर का मतलब वही होता है। अब यहाँ देखो वर्ड क्या है हमारे पास, वर्ड्स हैं हमारे पास टिकल। टिकल का मतलब सबको पता ही होता है, टू टच लाइटली और कॉज लाफ्टर, है ना, गुदगुदी करना, टिकल का मतलब वही होता है। ठीक है, क्लियर हो गया टिकल का मीनिंग, है ना, तो ये इसका आंसर नहीं है। देन वी हैव द वर्ड डिकॉय। डिकॉय का मतलब आपका वही होता है, डिकॉय का मतलब होता है ऐसी साजिश रचना जिसमें जो है कोई फंस जाए, तो ऐसे डिकॉय को हम ट्रैप के सेंस में यूज़ कर सकते हैं। अ ट्रैप मतलब जाल बुनना, साजिश रचना। समथिंग यूज टू अट्रैक्ट, किसी को अट्रैक्ट करने के लिए किसी चीज़ का इस्तेमाल करना। ओके, समथिंग यूज्ड टू अट्रैक्ट, उस सेंस में हम यूज़ करेंगे अट्रैक्ट। ओके, इस सेंस में हम डिकॉय का इस्तेमाल करेंगे, तो इसका ये आंसर हो जाएगा आपका। इसके अलावा दूसरे वर्ड्स हमारे पास रेजिस्ट है। रेजिस्ट का मतलब क्या होता है? रेजिस्ट का मतलब होता है टू अपोज और रिफ्यूज़, है ना, किसी को अपोज करना और रिफ्यूज़ करना। रिफ्यूज़ के सेंस में हम यूज़ करते हैं, रेजिस्ट को यूज़ करते हैं। देन वी हैव द वर्ड सस्पेक्ट। सस्पेक्ट को जो है हम किस सेंस में यूज़ करते हैं? जब भी कभी शक हो जाए तो हम उसे सवाल करते हैं, तो टू डाउट और क्वेश्चन, है ना, शक में सवाल ही तो करते हैं, तो ऐसा बोलते हैं, इस तरह से बोलते हैं, इस सेंस में यूज़ करेंगे। हमने देख लिया वर्ड हमारा क्या था, वर्ड था हमारा ल्यूर। ल्यूर का हमारा सबसे सिमिलर जो है वो यहाँ पे मीनिंग हो जाएगा डिकॉय। डिकॉय के सेंस में यूज़ करेंगे। डिकॉय का मतलब होता है अट्रैप, समथिंग यूज टू अट्रैक्ट, कोई जाल बुनना किसी चीज़ को लेके और किसी चीज़ को अट्रैक्ट करने के लिए। ठीक है, अगला वर्ड जो है हमारा है पेरिलस। ओके, जिस तरह से अभी हमने डेरिलस देखा था, डेरिलस का मतलब क्या हो रहा था? डेरिलस का मतलब था कि यहाँ पे यू सी देयर, डेरिलस का मतलब होता था वाइल्ड एक्साइटमेंट, ऐसे स्टेज में होना जहाँ पे एकदम से किसी को खबर ही ना हो, सब लोग में मॉब मेंटेलिटी में तब्दील हो गए हो, तो वाइल्ड फ्रेंजी में हो, कि एक्साइटमेंट में हो, तो इसमें हम डेरिलस का इस्तेमाल करते हैं। पेरिलस का जो है इसका सिनोनिम्स होता है, पेरिलस का मतलब होता है डेंजरस। सिनोनिम्स इसका क्या हो जाएगा? डेंजरस। पेरिलस का सिनोनिम देखो पहले, इसका मतलब होता है डेंजरस। ओके, अब डेंजरस का एक और सिनोनिम्स होता है, इसे हम बोलते हैं लीथल, LETHAL, लीथल बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, हमें मोस्ट डिसिमिलर देखना है। ओके, सो डिसिमिलर देखो यहाँ पे सेफ इसका मोस्ट डिसिमिलर हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, फिर उसके बाद वर्ड है हमारे पास डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का हम मीनिंग देख लेते हैं। डिसिप्लिन का मतलब होता है वेल ट्रेंड, है ना, ये इसका सिनोनिम हो जाएगा। देन वी हैव द वर्ड इज कंट्रोल्ड। ओके, अब देखो सिमिलर का मतलब क्या होता है? सिमिलर का सिनोनिम्स हो जाएंगे हमारे अलाइक, मतलब एक जैसे। ठीक है, इसी की तरह दूसरा सिनोनिम हो जाएगा हमारा इसका रिजेंबलिंग, मतलब बिल्कुल एक दूसरे से रिजेंबल कर रहा हूँ। आइडेंटिकल भी आप यूज़ कर सकते हो। आइडेंटिकल मतलब एक जैसे, इस सेंस में आप यूज़ कर सकते हो इसे। हमारा नेक्स्ट वर्ड है ऑनेस्ट। सो ऑनेस्ट को हम सिंसियर की तरह यूज़ कर सकते हैं, SINCERE, सिंसियर की तरह यूज़ कर सकते हैं। और जो भी सिंसियर होगा उसे हम ट्रुथफुल की तरह यूज़ कर सकते हैं, यानी कोई सच बोल रहा हो तो इस सेंस में हम इसे यूज़ करते हैं। ठीक है, सो पेरिलस का अगर मीनिंग देखा जाए, इसका ये सिनोनिम्स यानी मीनिंग इसके अगर देखा जाए तो इसका मीनिंग होगा डेंजरस, लीथल। पर इसका डिसिमिलर देखा जाए इस केस में हमारा सेफ आंसर हो जाएगा C। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला वर्ड हमारे पास है आइसोलेशन। अब आइसोलेशन का सिमिलर देखना है तो आइसोलेशन सबको पता होना चाहिए। आइसोलेशन का मतलब होता है कि किसी को अलहदा कर देना, उस सेंस में हम आइसोलेशन का यूज़ करते थे। ठीक है, सो आइसोलेशन का मतलब होता है अलग होना, बीइंग। अलग होना वो नहीं कि अलग दिख रहे हैं, मतलब सोसाइटी से अलग होना, जुदा होना। ओके,
सो लोनलीनेस के सेंस में यूज़ करेंगे, लोनलीनेस के सेंस में यूज़ करेंगे। ये इसका क्या हो गया, ये इसका सिनोनिम्स हो गया। ओके, क्या हो गया, सिनोनिम हो गया। देन यहाँ पे देखो हमें सिमिलर देखना है, तो इसमें सॉलिट्यूड इसका आंसर हो जाएगा। सॉलिट्यूड का मतलब भी वही होता है, बीइंग अलोन, लोनलीनेस। सॉलिट्यूड को सेम सेंस में यूज़ करेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया दोनों की मीनिंग। अब यहाँ देखो वर्ड है हमारा फियर। फियर वर्ड है, फियर का देखो यहाँ पे फीलिंग ऑफ बीइंग स्केयर्ड है ना। फियर वही तो होता है जहाँ पे आपको डर लगे, फीलिंग ऑफ बीइंग स्केयर्ड, उस सेंस में हम यूज़ करते हैं। ओके, और अगर देखा जाए तो हमारा प्लेंटीट्यूड वर्ड है एक। प्लेंटीट्यूड का मतलब होता है किसी चीज़ का भरपूर मात्रा में होना। सो एबेंडेंस में यूज़ करते हैं उसे। ठीक है, प्लेंटी के सेंस में यूज़ करते हैं इसे, एबेंडेंस प्लेंटी के सेंस में यूज़ करते हैं। डिसीज़ का मीनिंग सबको पता होता है, डिसीज़ का मतलब बीमारी होता है। ठीक है, ये भी सबको क्लियर होता है। तो सॉलिट्यूड इसका आंसर हो जाएगा। आइसोलेशन का इसका सिमिलर देखा जाए तो सॉलिट्यूड इसका आंसर हो जाएगा। आंसर हो जाएगा हमारा सी। अब देखो 10वां सवाल क्या कह रहा है। 10वां सवाल पूछ रहा है लल का मीनिंग क्या होता है। सो द स्पेलिंग ऑफ लल इज LULL। सो लल का मतलब होता है किसी चीज़ के लेके रुकावट आ जाना। ठीक है, सो लल उस सेंस में यूज़ करते हैं। सो अ टेम्परेरी पॉज। ओके, अ टेम्परेरी पॉज और ब्रेक टेम्परेरी होना चाहिए, इट शुड नॉट बी परमानेंट। लल उस सेंस में यूज़ करते हैं। सो यहाँ पे अगर हमें देखें सिमिलर देखना है ना, एज पर द क्वेश्चन इफ़ यू सी द सिमिलर, पॉज इसका आंसर हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, पॉज हो जाएगा। ओके, सो वी हैव द अदर वर्ड्स। वी हैव द वर्ड लाइक नॉइज। नॉइज का मतलब सबको पता होता है लाउड और डिसरप्टिव साउंड है ना, उस सेंस में यूज़ करते हैं। डिसरप्टिव, I'll write disruptive again. Loud, okay, loud और डिसरप्टिव साउंड है ना, क्लियर हो जाना चाहिए। डिसरप्टिव साउंड। बोरिंग का मतलब क्या होता है, बोरिंग का मतलब होता है नॉट इंटरेस्टिंग है ना, उस सेंस में यूज़ करते हैं। मार्क का मतलब होता है किसी चीज़ का साइन है ना, और इंडिकेटर। इंडिकेटर किसी चीज़ का कोई भी इंडिकेटर हो तो उसे हम मार्क की तरह यूज़ करते हैं। ओके, so far we have seen the 10 similar or dissimilar questions from the Jamia MBA Entrance English section 2017. As we have seen in the previous papers of Jamia MBA Entrance 2016, there were questions from the vocabulary of antonyms as well as synonyms. So in today's class we have seen the similar and dissimilar as well. So for other section of the English, stay with us at Star Education Center and we will help you in excelling Jamia MBA Entrance. Thank you for watching.